بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میرا نام ملک شاہزیب ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے اتنے زیادہ ملک جو آپ کو اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ ملک نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ چھوٹے سے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی سی بستیوں میں رہا کرتے تھے، اور اس خاص بستی میں اس تھوڑے سے علاقے کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجا کرتا تھا۔ فار ایگزامپل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جارڈن میں ڈیڈ سی کے پاس ایک بستی تھی بنی نعیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایجپٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عمان میں یہاں پر جو بستی تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی سی بستیوں میں لوگ رہا کرتے تھے، اس خاص بستی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 25 فیمس پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس میپ کو یوز کرتے ہوئے ان کی ہسٹری کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ میپ عمان میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سے آگے جو اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سعودیہ ملک ہے۔ سعودیہ ملک میں تبوک شہر سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ اس بستی کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس کے اوپر بھی پہاڑ ہیں، اور اس کے اس طرف بھی پہاڑ ہیں۔ تو یہ وہ بستی ہے مدین جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ ایک گھر ہے، آپ دیکھیں اس کا ڈیزائن انہوں نے کیسے بنایا ہوگا، اور اس کے ساتھ آس پاس اور بھی گھر ہیں پہاڑ پر بنے ہوئے۔ یہ سامنے پہاڑ ہیں، اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر اندر سے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، حرام پیسے کماتے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر بہت زیادہ گرمی کر دی، ہواؤں کو روک دیا، یہ اپنے گھر میں ہی رہ گئے۔ پھر ایک بادل آیا، یہ سب اس کے نیچے آئے کہ بادل کے نیچے گرمی کم ہوگی۔ تو جب سب بادل کے نیچے آئے تو اللہ نے بادل سے آگ کے چنگارے برسائے، ایک بڑا زلزلہ آیا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، سب لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی تو جارڈن میں یہ ان کا مقام ہے، اس کے پاس ایک مسجد بھی ہے جس کا نام حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ 14 نمبر پر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے، اس کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی اور انفارمیشن نہیں ملتی۔ نیکسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیبرون شہر میں ہی رہا کرتے تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی تھی تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت بدل گئی، اور جو نیا بادشاہ آیا فرعون، وہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو بیٹا تھا لاوی، اس کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ مصر میں منیا کے پاس کہا جاتا ہے، تقریباً یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ دریائے نیل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے آپ کو صندوق میں بند کر کے ڈال دیا تھا۔ یہ صندوق پانی پر تیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس جگہ پر فرعون کا محل ہوا کرتا تھا، اور اس وقت یہ فیوم میں اس جگہ پر فرعون کی شکارگاہ ہوا کرتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہی بڑا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ان سے قتل ہو گیا، تو سزا کے ڈر سے وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف آ گئے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 10 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ پھر مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروائیں، تو راستے میں ان کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔
कुरान पाक में सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि आप यहाँ ही रुकें, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से आपके लिए कुछ रोशनी लेकर आता हूँ। तो ये जबल मूसा है, इसी को कोहे तूर का पहाड़ कहा जाता है और इसके पास ये जगह बनी हुई है सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री। तो ये पीछे आपको कोहे तूर का पहाड़ बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको जबल मूसा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको माउंट सिनाई कहते हैं। इसके पास ये जो बिल्डिंग सी बनी हुई है इसको सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री कहते हैं, जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस चर्च से कुछ ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि हमें एक अहदनामा हमारी हिफाजत के लिए तहरीर कर दें कि फ्यूचर में मुसलमान इस चर्च को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये वो ओरिजिनल अहदनामा है जो ईसाइयों ने यहाँ पर लाइब्रेरी में 1400 साल से संभाल कर रखा हुआ है। निशानी के तौर पर इस अहदनामे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त का निशान भी लगाया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त का निशान है। और एक बात, यहाँ पर 6 कब्रें हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनमें से जब कोई मर जाता है तो जो सबसे पुरानी कब्र होती है उसमें से हड्डियाँ निकाल कर एक साइड पर जमा कर लेते हैं और नए बंदे को वहाँ पर दफना देते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कमरा है, ये खोपड़ियों से भरा हुआ है। जो लोग मरते आए हैं उनकी खोपड़ियों को एक सीक्वेंस से इन्होंने इस कमरे में रखा हुआ है। पता है कि यहाँ पर ये वो वाली झाड़ियाँ हैं जिनमें से आग निकल रही थी, इसलिए इसको दी बर्निंग बुश भी कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस आग के पास पहुँचे तो आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, अपनी जूतियाँ उतार दो और मैंने तुम्हारा बड़े नेक काम के लिए इंतखाब कर लिया है और जो तुम्हें हुक्म दिया जाए उसे गौर से सुनो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको 2 मोजज़े दिए कि ये फ़िरौन के पास लेकर जाओ और उससे अल्लाह की निशानियाँ दिखाओ और उसे कहो कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे। और यहाँ पर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरे बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मेरा साथी बना दे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन के पास गए तो अल्लाह ताला की फ़िरौन ने नाफरमानी की। ये वो जगह है जहाँ पर फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया था। फ़िरौन की लाश मिस्र में कायरा म्यूज़ियम में है। सन 1982 में इसका जिस्म ख़राब होना शुरू हो गया था, तो इसकी बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए इसको मिस्र से फ्रांस भिजवाया गया। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका पासपोर्ट बनाया गया। इसके पासपोर्ट पर रेमेसिस ये इसका नाम लिखा हुआ है और ये तकरीबन 3000 साल पहले ये किंग बादशाह हुआ करता था जो कि अब मर गया है, ये लिखा हुआ है। और फिर फ्रांस में जब इसकी डेड बॉडी पहुंची तो जिस तरह एक जिंदा बादशाह का इस्तकबाल किया जाता है बिल्कुल इसी तरह इसका वेलकम किया गया। डॉक्टर मोरिस ने जब इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो डॉक्टर मोरिस का इसके बारे में बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ये कौन सा बादशाह है जो आज से 3000 साल पहले पानी में डूब कर मर गया था। उसने टेस्ट किया तो पता चला कि उसके जिस्म पर अभी भी नमकियात लगी हुई हैं क्योंकि उसकी डेड बॉडी कुछ अर्सा तक दरिया में रही थी। और फिर उसने फ़िरौन के बारे में डिटेल्स जानना चाहिए कि ये कौन है। तो रात और बाइबल में बस उसको इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली कि वो दरिया में डूबकर मर गया था। फिर उसको कुरान पाक का पता चला तो उसको सूरह यूनुस की ये वाली आयत पढ़ के सुनाई गई कि फ़िरौन के पानी में डूबने के कुछ अरसा के बाद अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि उसकी लाश को पानी से बाहर फेंक दें ताकि वो लोगों के लिए इबरत का निशान बने, जबकि उसका बाकी सारा लश्कर दरिया में डूबकर मर गया था। ये हिस्ट्री है। जब डॉक्टर मोरिस को यह पता चला तो फ़ौरन जोश और खरोश में खड़ा हुआ और कहने लगा कुरान सच्चा है और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, और फ़ौरन मुसलमान हो गया। ये 3000 साल पुरानी फ़िरौन की लाश है। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान है कि देखो ये खुदाई का दावा करता था, क्या हाल किया अल्लाह ने इसका। खुदा सिर्फ एक है जो हम सब का हकीकी मालिक व मुख्तार है। कुरान में है कि फ़िरौन के मरने के बाद अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर इस जगह पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जिम्मेदारी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को देकर कोहे तूर पर इस जगह पर आए। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, लेकिन जब वापस गए तो उनकी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई थी। तो जिन लोगों ने शिर्क किया तो उनको उसकी सज़ा मिली। इसके अलावा सूरह काफ में कुरान पाक में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने
शागिर्द हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ दो दरियाओं के मिलने वाली जगह पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दरिया ये आ रहा है और दूसरा दरिया ये आ रहा है। यहाँ पर दोनों दरिया मिल रहे हैं। यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। और ये ऊपर इस जगह पर वादी तैया है। ये वादी वो जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने के लिए जहाद का ऐलान किया था, लेकिन बनी इसराइल ने जहाद करने से इनकार कर दिया था, जिस पर अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी। 40 साल तक इसी वादी में बनी इसराइल भटकते रहे और इनके लिए जन्नत से खाना भी इसी वादी में आता रहा था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो ये देख सकते हैं आप पहाड़ के ऊपर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मज़ार है। इनके मज़ार के ऊपर ये सफ़ेद रंग का गुंबद बना हुआ है और ये तख्ती लगी हुई है मज़ार के बाहर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और बाकी डिटेल भी लिखी हुई है। मज़ार के अंदर इस तरह का कमरा बना हुआ है और ये दरवाजे के बिल्कुल सामने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की डेथ के कुछ अरसे के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान यरूशलेम से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से एक मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार है। मस्जिद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है और मस्जिद के बाहर तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नबी मूसा मस्जिद एंड मकाम। मस्जिद के अंदर एक ये कुआं है और एक ये वाला कुआं है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको पानी पिलाने के लिए। और मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है। लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और मस्जिद में ये खिड़की है यहाँ पर, इसके अंदर सामने से आप देख सकते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। और ये वाला जो दरवाज़ा है यहाँ से लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए जा सकते हैं। जब इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो ये सामने आप देख सकते हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाने के लिए जिहाद का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने क़यादत की और बैतुल मक़दस को फ़तह किया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो ये आप देख सकते हैं जॉर्डन में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के नाम से मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर ही इनका मकाम है। इस मस्जिद के बाहर तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद और मकाम अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। इस मस्जिद में ये वो जगह है जहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। ये हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बेसिकली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे के बेटे के बेटे थे और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर ये कुतबे के ऊपर कुरान पाक की वो आयात लिखी हुई हैं सूरह काफ की, व इस काला मूसा कि ये उस वाक़ये की हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जब उनकी मुलाकात हुई थी। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन के हेब्रून शहर में रहा करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियादें रखी थीं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र में बादशाही से नवाजा था, तो बनी इसराइल हेब्रून शहर से मिस्र में आ गए थे। फिर बहुत से सालों के बाद मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत आ गई। फ़िरौन बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से छुटकारा दिलाओ और बनी इसराइल को वापस फ़लस्तीन में लेकर आओ। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वापस फ़लस्तीन में लेकर आए तो बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए जहाद का ऐलान किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई। फिर हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में यहूदियों ने बैतुल मक़दस को फतह किया। तो ये बैतुल मक़दस है, आप देख सकते हैं इसके पास सिटी ऑफ दाऊद है। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शहर है। इस शहर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 33 साल तक हुकूमत की। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी सीक्वेंस से इसके बाद आने वाले अंबिया के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, उनके लिए 3 बार प्लीज़ सूरह इखलास पढ़ दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।